وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک گلوبل انیشیٹو لانچ کیا ایک اپیل کی شکل میں۔ وہ مخاطب ہوئے گلوبل لیڈرز سے، وہ مخاطب ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے، اور انہوں نے یہ استدعا کی کہ کووڈ 19 نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ انسانی نقصان جو ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ 1,30,000 سے اموات تجاوز کر گئی ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ ہے اس کا انسانی پہلو۔ اس کا ایک معاشی پہلو بھی ہے، اور معاشی پہلو یہ ہے کہ پوری گلوبل اکانومی اس سے متاثر ہو چکی ہے، اور بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اگر 3% کنٹریکشن ہوتی ہے گلوبل اکانومی میں تو اس کا امپیکٹ ہوگا کوئی $9 ٹریلین کے قریب۔ تو اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کاروبار بند ہیں اور جاب لیسنس ہو رہی ہے، نہ صرف پاکستان میں، امریکہ جیسے ملک میں، اور ڈیولپڈ اکانومیز میں، یورپ میں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دے آر فیلنگ دا پنچ۔ ایکسپورٹس متاثر ہو گئی، ریمیٹنسز کے متاثر ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں، لے آفس کا خدشہ موجود ہے۔ تو اس ماحول میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں دنیا متاثر ہو رہی ہے، آپ متاثر ہو رہے ہیں، ڈیولپڈ ورلڈ متاثر ہو رہی ہے، ڈیولپنگ ورلڈ پر زیادہ اثر ہوگا۔ اور میں بات کر رہا ہوں ڈیولپنگ ورلڈ کی، میں اس کی وکالت کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے، کیونکہ پاکستان اس ڈیولپنگ ورلڈ کا حصہ ہے، مجھے اندازہ ہے کہ اس کا پاکستان پر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اکنامک سٹیمولس اور پیکج دیا، اور اسکریپ کر کے بمشکل ہم $8 بلین کا پیکج دے پائے، اور اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کا جو امپیکٹ پاکستان کی معیشت پہ پڑے گا، تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں ٹو دی ڈیولپنگ ورلڈ، تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اب ڈیولپنگ ورلڈ کی دو اور مشکلات ہیں۔ ایک، ان کے پاس فسکل سپیس نہیں ہے، اور نمبر 2، ان کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ فریجائل ہے۔ اب جہاں ان کی آمدن گر رہی ہے، جہاں ان کی برآمدات متاثر ہو رہی ہیں، وہاں ان کے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ وینٹیلیٹرز چاہیے، اکوپمنٹ چاہیے، ہاسپٹلز کو آپ نے اپنا ان کے ری انفورس کرنا ہے، ضروریات پوری کرنی ہے۔ تو سب سے مناسب اور کوئک رسپانس اگر دنیا دے سکتی ہے تو وہ ڈیٹ ریلیف کی شکل میں دے سکتی ہے۔ تو یہ آپ کر گزریے، اور اس گلوبل انٹر کنیکٹڈ دنیا میں اس کا فائدہ صرف ڈیولپنگ ورلڈ کو نہیں ہوگا، اس کا سپن آف جو ہے وہ ڈیولپنگ اور ڈیولپ ورلڈ کو ہوگا، کیونکہ آج ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ چین متاثر ہو رہا ہو تو امریکہ متاثر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ یورپ متاثر ہو رہا ہو اور پاکستان کی منڈیاں متاثر نہ ہو رہی ہوں۔ دیٹس دا کنیکشن۔ اس کے لیے انہوں نے ڈیٹ ریلیف کا تقاضا کیا، اور یہ ہم کچھ عرصے سے ہم اس پر خاموشی سے کوشش کر رہے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آپس میں دفتر خارجہ میں ایک مشاورت کا عمل اس کا آغاز کیا، اور فورن سیکرٹری صاحب سے میں نے درخواست کی، اور انہوں نے ڈی جی یو این جو تشریف فرما ہے، ہمارے جو پی آر ہیں نیو یارک میں منیر اکرم صاحب، اور جنیوا میں خلیل ہاشمی صاحب، مل بیٹھ کر ہم نے ایک پلان مرتب کیا، ایک حکمت عملی وے فارورڈ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کہ ہم اس کو اپروچ کریں تو کیسے کریں۔ آسان کام نہیں ہے۔
तो हमने एक पेपर बनाया. जो हमने पेपर बनाया, अब उस पेपर को तो बेसिकली तो ये जो नोक पलक है, तफसीलात हैं, वो तो या फाइनेंस समझ सकता है या इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन समझ सकता है. हम तो डिप्लोमेटिक आउटरीच कर सकते हैं, जिसका हमने आगाज किया. तो फिर मुनासिब समझा कि जो मुतल्लका वज़रा हैं उनको दावत दी जाए दफ्तर खारजा में. तो मैंने दावत दी एडवाइजर फाइनेंस को हफीज शेख साहब को, मैंने दावत दी मिनिस्टर प्लानिंग को असद उमर साहब को, और मैंने दावत दी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के उस वक्त जो वजीर थे हमाद अजहर साहब को. और ये जो हमारा प्लान था मैंने उनसे शेयर किया ताकि उनका इनपुट लिया जाए. उन्होंने बड़े मुफीद मशवरे दिए, हमने उनके मशवरों को शामिल किया, और जब हमने एक अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बना ली तो फिर मैंने वजीर आजम से दरखास्त की. लाहौर तशरीफ ले जा रहे थे, हम इकट्ठे थे जहाज में, तो मैंने उनसे प्लान शेयर किया. एंड ही सेड इट्स अ वेरी गुड आइडिया, हमें बढ़ना चाहिए इस तरफ. मैंने एहतियातन ये भी कह दिया कि इसके रिस्क्स भी हैं. तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा बिल्कुल रिस्क्स हैं, लेकिन हमें ये रिस्क लेना चाहिए. चुनांचे हमने उनकी इजाजत के बाद पूरा एक जो उनसे दरखास्त की कि इस अपील को आप लॉन्च कीजिए. तो 12 अप्रैल को उन्होंने इस अपील को लॉन्च किया. इससे पहले मैंने जिसे कहते हैं ना इसकी स्पेड वर्क के लिए तकरीबन 30 वज़रा खारजा से न सिर्फ खतूत लिखे बल्कि उनसे टेलीफोनिक राब्ता किया और उनको बताया और उनकी खिदमत में पाकिस्तान का और डेवलपिंग वर्ल्ड का मुकदमा रखा कि हम चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, इसका फायदा हमें क्या होगा और दुनिया को क्या होगा, और उनका ज़हन बनाने की कोशिश की. अल्हम्दुलिल्लाह 12 तारीख को इमरान खान साहब ने अपनी अपील लॉन्च कर दी, और उसी दिन हम फॉरेन ऑफिस से लेटर्स तैयार करके ले गए थे जो एड्रेस थे टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, एड्रेस थे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सरबराहान की तरफ और ग्लोबल लीडर्स की तरफ. हमने खतूत अरसाल कर दिए और उन खतूत के बाद हमने अपनी डिप्लोमेटिक जो अपनी एक्टिविटी है उसको जारी रखा. कल शाम को जो गुजरी कल है, मेरी 6:30 बजे चीन के वजीर खारजा से इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन जो है वो G20 का एक अहम मुल्क है. और अगर आपकी मैं तवज्जो मबजूल कराऊं कि G7 का जो इजलास हुआ था G20 से पहले, तो G7 के इजलास में हमारी ये चीज जेर बहस आई, और इससे पहले जो यूरोपियन यूनियन का इजलास हुआ था उसमें भी इसको जेर बहस लाया गया. G7 रिसेप्टिव था, लेकिन G7 ने कहा कि हम तब आगे बढ़ सकते हैं अगर G20 इस पर मोहर सब्त करे. अब G20 में आप जानते हैं कि 2 अहम ममालिक और भी हैं, चीन है, रूस है, और चीन और रूस का इस पे ऑन बोर्ड होना भी बहुत जरूरी था. अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम की अपील को फौरन सराहा और उसकी हिमायत की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल. उनका क्लिप भी आपके सामने है और आपने देख लिया होगा, मीडिया पे वो चल भी चुका है. और उन्होंने वजीर आजम इमरान खान का नाम लेके कहा कि उन जो इमरान खान ने बात की है वो उसी स्पिरिट में बात कर रहे हैं जिस स्पिरिट का मैं तकाजा कर रहा हूं. तो उन्होंने G20 में भी उसी अंदाज में गुफ्तगू फरमाई. मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के व्यूज भी आप सुन चुके हैं, उन्होंने भी इस चीज को सराहा, अप्रिशिएट किया, और बात गई G20 में. तो कल रात G20 के इजलास ने एक तारीखी फैसला किया, और वो तारीखी फैसला ये है कि उन्होंने डेवलपिंग वर्ल्ड को, जिसमें 76 ममालिक आते हैं,
انہیں ڈیٹ ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, بڑا بر وقت فیصلہ ہے, اور اس فیصلے کے ذرا وسعت کو دیکھیے. 76 ممالک بیک وقت اس سے مستفید ہوں گے, اور اس کی اپلیکیشن بھی فی الفور ہو جائے گی. 1 مئی سے اس کا جو ہے اس کا اجرا ہو جائے گا. تو یہ ہے اس کا فائدہ. اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ انشاءاللہ پاکستان کو فسکل سپیس ملے گی, اور پاکستان اس فسکل سپیس کو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت, پاکستان کی عوام اور ان کی بہتری کے لیے, اور وہ طبقہ جو اس وقت پسا ہوا طبقہ ہے, جو افلاس اور جو بلبلا رہا ہے, جس کی 2 وقت کی روٹی, جو دہاڑی دار طبقہ ہے, جس کو گھر میں راشن دینے کی مجبوری پڑ رہی ہے, جس کو ہمیں 144 ارب کی شکل میں ہم احساس کا کفالت پروگرام جو ہے اس کا ہم نے اجرا کیا ہے, جس کو پہنچنے کے لیے ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ گھرانوں تک رسائی کا ایک شفاف پلان دیا ہے, جس کی رسائی کے لیے پنجاب حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے 25 لاکھ گھرانوں کو انصاف امداد پیکج کا جو اعلان کیا ہے. تو یہ اس کی معاونت کے لیے, اس کو تقویت دینے کے لیے ایک اور سٹیپ فارورڈ ہے. میری ابھی یہاں آنے سے پہلے ہمارے جو ایڈوائزر ہیں فائنینس کے, حفیظ شیخ صاحب, ان سے پرانا تعلق ہے, ہم پہلے بھی اکٹھے رہے ہیں, اور میں نے ان سے میٹنگ کی ہے, تبادلہ خیال کیا ہے. نمبر کرنچنگ obviously جیسے ڈیٹیل سامنے آئیں گی, انفولڈ ہوں گی, تو وہ نمبر کرنچنگ کریں گے, EAD فائنینس کر کے, تو انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے, اور ہم اس کوآرڈینیٹڈ چیز کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. میں پاکستان کو, میں ڈیولپنگ ورلڈ کو, اور میں عمران خان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ناممکن دکھائی دیتا تھا, اور میں آپ کو عرض کر دوں, بہت محتاط آوازیں بھی میں نے سنی اور میرے کانوں تک پڑی کہ ذرا ٹھہر جائیے, ذرا سوچ لیجیے, جیسے کوشش ہوتا ہے, ہماری ایک فطرت ہے. تو اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا کہ لیو اٹ ٹو گاڈ, ہمیں نیک نیتی سے آگے بڑھنا چاہیے. اجر اللہ کی طرف سے ملتا ہے, اور وہ اجر انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو ملے گا. ایک آخری بات کر دوں, میں یہ بھول گیا تھا, اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک نہیں ہے, تقریباً ابھی کچھ عرصے بعد 2 سال ہو جائیں گے, ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے اس گورنمنٹ کو. یہ چوتھا گلوبل انیشیٹو ہے, چوتھا گلوبل انیشیٹو جو عمران خان صاحب نے لیا ہے, اور دفتر خارجہ نے ان کی معاونت کی ہے, اور ان کے ویژن کو پروموٹ کرنے کے لیے کوشش کی ہے, اور میں ان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1, ان کا جو کلائمیٹ چینج کا گلوبل انیشیٹو تھا, انہوں نے لیا اور اس کو سراہا گیا. ان کا دوسرا انیشیٹو تھا جو انہوں نے اسلاموفوبیا, جس طرح نبی آخر الزمان پر جو کیریکیچرز کی شکل میں چیز آئی, وہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ, اور جس طرح ہم نے اس کو لڑا OIC کے فورم پر, اقوام متحدہ کے فورم پر, وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور اپنی تقریر میں انہوں نے ذکر کیا. اس کے بعد جو کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی, illicit فائنینشل فلوز کا جو ان کا انٹرنیشنل انیشیٹو تھا, وہ تیسرا تھا, اور آج چوتھا ان کا جو گلوبل ڈیٹ ریلیف کا انیشیٹو تھا, وہ آج اس کا چوتھا ہے. تو اس مختصر عرصے میں یہ 4 گلوبل انیشیٹوز ہیں جو پاکستان نے, جن کو لیڈ کیا ہے, اور پاکستان کے فورن آفس نے اس پہ اپنا رول پلے کیا ہے, اور اس کو انٹرنیشنل پذیرائی ملی. جی گو اہیڈ. یہ فرمائیے, اس کی تھوڑی سی تفصیلات بتائیں. ایک تو جی
ایک تو یہ فرمائیے کہ اس میں ہمیں کن کن انسٹیٹیوشن سے ریلیف مل رہی ہے؟ صرف آئی ایم ایف سے مل رہی ہے یا ورلڈ بینک سے مل رہی ہے یا دیگر بھی بین الاقوامی مالیاتی ادارے؟ نمبر 1. نمبر 2، اس میں بتائیے ہمارا ٹوٹل اس وقت قرضوں کا حجم کیا ہے، اور اس میں کیا ہمیں جو مارک اپ انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے یا قرضے ری شیڈول ہو رہے ہیں، یا جس طرح آپ نے کہا ہے 1 مئی سے یہ نافذ العمل ہوگا، تو اس میں کیا چیز ہے؟ آر دی ری پیمنٹ آف دی انسٹالمنٹس آف دا لونز از بینگ ری شیڈولڈ اور سسپینڈیڈ؟ ایک تو ٹوٹل حجم بتائیے، کس کس مالیاتی ادارے سے کیا بینیفٹ ملے گا؟ جہاں تک اداروں کا تعلق ہے تو اس میں سبھی ادارے آ جاتے ہیں، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں، آئی ایم ایف آ جاتا ہے، ورلڈ بینک آ جاتا ہے۔ اس میں آپ نے انہوں نے جو ذکر کیا ہے، انہوں نے تو بائیلیٹرل انیشیٹو کی بات بھی کی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے امکانات بھی ہیں، لیکن اگر آپ اس کی اسپرٹ کو دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جتنے فسکل ٹولز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ابھی انہوں نے اس کو بڑھا دیا، جتنے فسکل ٹولز اویلیبل ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے ان ممالک کی مدد کرنے کے لیے، تو انہوں نے اسکوپ وائڈن کر دیا۔ اب اس کا امپیکٹ اگر آپ دیکھیں تو دیکھیے پاکستان تقریباً ہر سال آپ کو ٹوٹل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آپ کے ہیں، آپ کے جو بائیلیٹرل ہیں لونز ہیں، آپ کے کمرشل لونز ہیں، اگر پورا حجم آپ دیکھیں تو رفلی آئی ایم ناٹ اے فائنینشیل ایکسپرٹ، وہ بتا سکتے ہیں، رفلی یہ 10 سے 12 ارب روپے کا یہ ایک آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے نا، یہ آپ کو دینا پڑتا ہے۔ اچھا، ایک تو اس میں یقیناً اب اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیریڈ کتنا لمبا ہوتا ہے، جی اس پیریڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیلکولیٹ کر سکیں گے۔ اس لیے حفیظ شیخ صاحب کا یہ خیال تھا کہ ابھی ہم ذرا اس کو اور اس کی ڈیٹیل سامنے آنے دیں تو ہم صحیح کیلکولیٹ کر پائیں گے کہ پاکستان کو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ سبسٹینشل امپیکٹ ہوگا۔ جی تھینک یو شاہ صاحب، میں علی حسین بزنس ریکارڈر سے۔ شاہ صاحب آپ نے 76 کنٹریز کی بات کی ہے کہ ان کو ملے گا ریلیف، تو آئی ایم ایف نے جو کیٹیگرائزیشن کی ہے ہیویلی انڈیٹڈ پور کنٹریز کے HIPC، وہ جو 39 کنٹریز ہیں اس میں پاکستان نہیں ہے شامل۔ آپ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے ہیں بھائی جان، تو وہ پرانی بات کر رہے ہیں، آپ تھوڑا سا مجھے آپ پرانی بات کر رہے ہیں نا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اوریجنل خبر یہی تھی۔ آپ تھوڑا سا اگر کلیریفائی کر دیں کہ پاکستان کو مطلب کس حد تک کون کون سے انسٹیٹیوشن سے ہم، میں پہلے کہہ چکا ہوں، انسٹیٹیوشن کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ دیکھیے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا ہم نے ریلیف دینا ہے ٹو LDCs، لیسٹ ڈیولپ کنٹریز، اگر ان کا آپ تذکرہ کرتے ہیں تو وہ 25 ملک اس سے مستفید ہو سکتے تھے، اور پاکستان کی کوشش تھی اور پاکستان پچ کر رہا تھا ناٹ جسٹ فار دی LDCs، پاکستان واز پچنگ فار IDA، جس میں یہ اس کا سکوپ براڈن کرنے کے لیے پاکستان کوشش کر رہا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس میں کامیابی ہوئی ہے، اور اب اس کا جو امپیکٹ ہے، جو ریلیف ہے، وہ 25 کو نہیں 76 ممالک کو ملے گا۔ جی اعجاز صاحب، GNN۔ میں JNN سے ہوں۔ آپ وزیر خارجہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سینئر اور سیزنڈ پولیٹیشین بھی ہیں، اور جو پولیٹیکل انڈر کرنٹس ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ یہ جو ہمیں IMF سے ریلیف مل رہا ہے، یہ بہت ویلکم اسٹیپ ضرور ہے، لیکن جو ہماری انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں، جس طرح سے PTI اور پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ اور PTI کی وفاقی حکومت ایک دوسرے کی پولیٹیکل ٹرولنگ کر رہی ہیں، کیا اس سچویشن میں یہ ریلیف ہمیں وہ فائدہ دے سکے گا اس رویے کے ساتھ جو جاری ہے؟ ریلیف سے یقیناً فائدہ دے گا، رویہ جو بھی ہو، ریلیف سے فائدہ ہوگا، پاکستان کی عوام کو ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں تک رویوں کا تعلق ہے، میں نے ہمیشہ کہا ہے، میں ریکارڈ پر ہوں کہ یہ ایک گلوبل پینڈیمک ہے، اس کے لیے ہمیں ایک گلوبل اتفاق رائے اور تعاون درکار ہے، ٹھیک؟ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان جس نے سارک کے فورم کا حلیہ بگاڑنے کی مکمل کوشش کی، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے سارک کے سمٹ کو انڈرمائن کیا، مسلسل انڈرمائن کیا،
जब उन्होंने कोविड-19 की बात की तो हमने दफ्तर खारजा में बैठकर फैसला किया कि गो उनकी नीयतों का हमें इल्म है, लेकिन हम अपने खित्ते की और इंसानियत की बेहतरी को सामने रखते हुए हम उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। मैं आपको एक सोच बता रहा हूं और हमने उसमें शमूलियत अख्तियार की। जो हेल्थ एक्सपर्ट्स की मीटिंग हुई हमने उसमें भी शमूलियत अख्तियार की और हमने सार्क के हेल्थ मिनिस्टर्स के लिए भी हम पिच कर रहे हैं कि उनका इजलास भी किया जाए। अब जहां तक अंदरूनी मुल्क है, हुकूमत क्या कर सकती थी कंसेंसस बिल्ड करने के लिए? वजीर आजम ने एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी जिसमें सब वफाकी अहम इदारे जो मुतल्लिका हैं उस पर शामिल हैं। उसमें चारों सूबों के वज़राए आला शामिल हैं, उसमें आजाद कश्मीर के वजीर आजम शामिल हैं और उसमें गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला शामिल हैं। यानी कि मुल्क की पार्लियामेंट के जो 3 बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीनों की नुमाइंदगी है किसी न किसी शक्ल में। यानी कि उनका इनपुट, उनकी सोच, उनका फीडबैक मिल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, हमने इजलास बुलाया स्पीकर साहब की सरबराही में और स्पीकर साहब को दावत दी कि वो जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उनको बुलाएं और उनकी ख्यालात से हम मुस्तफीद होना चाहते हैं और उनकी मुस्बत जो राय है उनको हम अपने प्लान में परोना चाहते हैं। चुनाचे मुझे वजीर आजम ने नामजद किया और हम 2 इजलास तो मैं खुद अटेंड कर चुका हूं और तहरीक इंसाफ का, वजीर आजम इमरान खान का विजन पेश कर चुका हूं और उनकी आरा से वजीर आजम को आगाह कर चुका हूं। नंबर 3, इन सारी सोचों को यकजा करने के बाद हमने एक न्यूट्रल बॉडी जिस पे सबको एतमाद हो, हमने एनसीओसी की शक्ल में तश्कील दी। एरा के दफ्तर में वो काम कर रही है, रोजाना वो मिलती है, उसमें सब सूबों को नुमाइंदगी दी गई है। उनके चीफ सेक्रेटरीज जो हैं, सिंध की हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी मौजूद होते हैं एनसीओसी में और सिंध के पीपल्स पार्टी के वजीर आला मौजूद होते हैं एनसीसी में। और सबसे पहले वजीर आजम जिनकी बात सुनते हैं वो मुराद अली शाह साहब सिंध के वजीर आला हैं। अब इसके बावजूद 18वीं तरमीम इजाजत देती है कि सूबों को फ्लेक्सिबिलिटी देती है और हम उस फ्लेक्सिबिलिटी को तस्लीम करते हुए हमने कहा कि ग्राउंड की रियलिटीज और हकायक आप सामने रखते हुए अगर अपने मकामी हालात के मुताबिक कोई आप 19-20 नोक पलक दुरुस्त कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको अपने सूबे के अंदर कराची के लिए हिकमत अमली और बनानी पड़े, थरपारकर के लिए, उमरकोट के लिए और बनानी पड़े। तो ये वजीर आला सिंध के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो कहां कर रहे हैं और कैसे करते हैं। हमारी नीयत सबको लेके चलने की है। पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम है, सिंध हमारी अहम इकाई है और मेरा तो सिंध से ताल्लुक और नौयत का है, तो इंशाअल्लाह हम उन्हें मायूस नहीं करना चाहते, हम इस बिकरिंग में नहीं पड़ना चाहते और मुझे यकीन है कि वो भी नेक नियति से काम कर रहे हैं। जी आप। सर ज़हीर नाम है, समा टीवी से हूँ। पहले बात तो यह है जो इनिशिएटिव आप लोगों ने उठाया है इस पे अगर आईएमएफ और इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो पाकिस्तान को रिलीफ देते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरे एक सवाल है, उसके 2 पार्ट्स हैं। पहला सवाल ये है कि आपने अगर अभी भी आपको अगर लग रहा है सर अभी वही अगर से आगे आ जाओ ना यार। सर पहला सवाल ये है कि जो आपने इनिशिएटिव लिया था कोविड-19 के हवाले से, आपने कितना मुतालबा किया था कि कब तक ये होना चाहिए, सालों में था या जब तक ये वबा है? दूसरा ये है कि जो G20 ने अब मंजूरी दी है कि जो 76 अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको रिलीफ दिया जाए, तो वो उसमें कोई ड्यूरेशन है, कोई सालों की है या सिर्फ चंद्रमा की? देखिए, इस इनिशिएटिव को जो हमने लिया था, इस इनिशिएटिव का जो हमने लिया था, हमारा इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या था? अपने लिए और डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए फिस्कल स्पेस पैदा करना। उस ऑब्जेक्टिव में हमें कामयाबी हुई है और इंशाअल्लाह इस फैसले के बाद आपको और डेवलपिंग वर्ल्ड को फिस्कल स्पेस मिल जाएगी। आपने ड्यूरेशन की बात की है, तो इस वक्त ड्यूरेशन जो है ख्याल किया जा रहा है 1 साल की बात हो रही है, लेकिन
इट ऑल डिपेंड्स कि आगे सिचुएशन अनफोल्ड कैसे करती है। देखिए, अभी कुछ कह देना हतवी नहीं है, ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और सिचुएशन इवॉल्व कर रही है। पता नहीं ये 2 महीने चलता है, ये 6 महीने चलता है, ये साल चलता है, 1.5 साल चलता है, मुख्तलिफ आरा हैं। इट कैन वेरी फ्रॉम 2 months to 2 years, who knows? अनस जी। पहला तो 40,000 पाकिस्तानियों को बाहर वापस लाना है। पीआईए का रेट अभी 6,000 पाकिस्तानी पर हफ्ता है, तो क्या इस हिसाब से तकरीबन 7 हफ्ते के अंदर ये रिपैट्रिएशन मुमकिन होगी? तो क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल कैरियर्स को भी अलाउ करेगा कि वो लेके आए, और उन पाकिस्तानियों को क्या जो यहाँ से जाना चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, हमने देखा इसका जवाब ले लो, कंफ्यूज रहेंगे, फिर दूसरा कर लेना। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपकी वसादत से कहना चाहूंगा, स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी जो बाहर हैं, हमने क्या किया? फॉरेन ऑफिस ने इमीडिएटली जब ये क्राइसिस सामने आता है, फॉरेन सेक्रेटरी बैठे हैं, मैं इनसे दरखास्त करता हूं कि हमें 24/7 इसके लिए एक अरेंजमेंट करना चाहिए। चुनाचे हमने क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर बनाया, एक डीजी लेवल के ऑफिसर को वहां तैनात किया और उनके जिम्मे लगाया, अपने मिशन को हिदायत दी और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्शन हमने शुरू कर दी। और आप रात के आ जाए 3 बजे, किसी दिन रात के 2 बजे आ जाएं, और क्राइसिस जो सेंटर है वो मैन्ड है, डे एंड नाइट 24 hours 7 days of the week, right? It has never happened before, it's happening now. तो उस इंफॉर्मेशन को हमने सामने रखते हुए हमने एक प्लान मुरतब किया कि इनको वापस कैसे लाना है। वापस लाने के लिए हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अपनी कैपेसिटी का चैलेंज है। हम तो चाहते हैं रातों रात वो आ जाए, लेकिन जब वो उनको लाना है तो टेस्टिंग करनी है, लोकल ट्रांसमिशन का खतरा भी तो है ना, उससे कैसे बचना है, हमने उनको भी महफूज करना है और जिन फैमिली से आके वो मिंगल करेंगे उनको भी महफूज करना है। चुनाचे टेस्टिंग की एबिलिटी को देखना था हमने, और फिर क्वारंटीन फैसिलिटी को देखना था। और फिर आपके इल्म में है कि सब एयरपोर्ट्स आपने बंद कर दिए थे, डोमेस्टिक फ्लाइट्स मां सिवाय गिलगित के सब बंद है, आपके इल्म में है। नाउ हाउ डू वी डू इट? और तजर्बा भी नहीं था पहले ये करने का, तो हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को खोला, और एयरपोर्ट को खोलने से पहले हमने यहां दफ्तर खारजा में कई नशस्तें की, एनडीएमए को बुलाया, एनआईएच को बुलाया, ओवरसीज पाकिस्तानीज को बुलाया, एविएशन को बुलाया, ताकि उनकी मशावरत से, उनकी एक्सपर्टीज से मुस्तफीद होकर हम एसओपीज डेवलप करें। हमने एसओपीज डेवलप की, वो एसओपीज हमने एनसीसी में शेयर की, उसका अप्रूवल लिया और फिर उसको हमने ऑन ग्राउंड टेस्ट किया। टेस्ट करने के लिए हमने पहले हफ्ते में हमने फ्लाइट्स लेकर आए और तकरीबन 2000 पाकिस्तानी स्ट्रैंडर्ड जो थे बाहर, उनको लेकर आए कि उतरेंगे कैसे, टेस्ट कैसे होगा, किस होटल में जाएंगे, क्या होगा, उनकी सीट मैपिंग क्या है। सिर्फ मुझे सीट पे नहीं बिठाना, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे जो लोग बैठे हैं, खुदा ना खास्ता अगर मैं पॉजिटिव निकल आता हूं तो इन सबको क्वारंटीन करना होगा। डू वी हैव द फैसिलिटीज? वी डिड नॉट हैव द फैसिलिटीज। अच्छा, एयरपोर्ट सारे बंद थे। फिर हमने जब ये फैसला कर लिया और हमारा तजर्बा कामयाब हुआ, तो फिर हमने दूसरा फेज शुरू किया। जब दूसरा फेज हमने किया और हमारा एतमाद और बेहतर हुआ, तो फिर हमने 20 तारीख से तीसरे फेज का हम आगाज करने चले हैं, जिसमें हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, 2000 से 7000 तक ले जा रहे हैं। अब वो कैसे बढ़ाएं हम? जब हम बढ़ाने की कोशिश करते थे, पंजाब से बात करें तो वो एयरपोर्ट खोलने को तैयार नहीं है, सिंध से बात करें वो एयरपोर्ट खोलने को तैयार नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा से बात करें वो एयरपोर्ट खोलने को तैयार नहीं है। तो सिर्फ इस्लामाबाद बोझ ले सकता है? नहीं ले सकता, मुमकिन नहीं था, लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं था। चुनाचे उन गवर्नमेंट्स को कायल करना पड़ा, उनको मनाना पड़ा, उनको कायल करना पड़ा। ये पाकिस्तानी है भैया, ये पाकिस्तान को इकोनॉमी को सहारा देते हैं, हम उनको अपना वीआईपीज कहते हैं, पर आज वो वीआईपीज जो हैं अगर दिक्कत में हैं तो मेहरबानी कीजिए, थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिए, अपने एयरपोर्ट्स खोलिए। अब वो आमादा हुए हैं और उस आमादी के बाद कल सऊदी अरेबिया से एक फ्लाइट लाहौर के लिए आई है और आज गालिबन 16 तारीख है, आज मुल्तान आ रही है, तो मुल्तान के एयरपोर्ट को खुलवाया, ये चीजें खुलवाई, वहां क्वारंटीन के बंदोबस्त किए, वहां टेस्टिंग का बंदोबस्त किया, वहां लोगों को एसओपी से आशना कराया। अब ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। अब कुछ यहां लोग फंसे हुए थे, जो यहां फंसे हुए थे हमने चार्टर्ड फ्लाइट्स दी, ब्रिटिश नेशनल्स को, कैनेडियंस को, यूरोपियंस को हमने बाहर भेजा।
2 दिन पहले मेरी जो इस वक्त एक्टिंग वजीर आजम हैं और वजीर खारजा हैं बरतानिया के, उनसे मेरी बात हुई और उनने मुझसे दरखास्त की कि हम चाहते हैं कि 7,748 हम ब्रिटिश नेशनल को भिजवा चुके अपने PIA से। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि और जो यहाँ कोई 8,000 के करीब फंसे हुए हैं, हम उनको ले जाना चाहते हैं, आप हमारे साथ तावन कीजिए। हमने कहा क्या तावन चाहते हैं आप? वो कहते हैं हम चाहते हैं कि हमारी फ्लाइट्स भी हमें आने की इजाजत दीजिए। हमने कहा बिस्मिल्लाह, लीजिए, आप आइए, ले जाइए। और उसमें PIA को कहा कि आप भी बिड कीजिए, अगर आप कंपेटिटिव होंगे तो आप भी उसमें हिस्सेदार बन जाएंगे, सो जो भी उसमें मुस्तफीद हो सकता है वो हो। और हमने ये PIA को तरजीह पहले इसलिए दी कि PIA आप पहले जानते हैं खसारे में थी, जहाज खड़े हुए थे, तो चलो उनकी एक्टिविटी शुरू होती है, कुछ ना कुछ वो भी अपना सहारा चलाते हैं और वो अपने पांव पे इदारा खड़ा होता है। तो ये हमने एक हिकमत अमली अपनाई है। फिर हमारे कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं, कुछ तबलीगी लोग हमारे दोस्त हैं जो यहां हैं, जिनको हमने बाहर भेजना है, और कुछ बाहर हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक 2,248 हैं जो मुल्क से बाहर हैं, उनको हमने वापस लाना है। उसके लिए भी हमने एक अरेंजमेंट किया है। स्पीकर साहब ने भी मेहरबानी फरमाई है, उसके लिए कमेटी बनाई है। शहरयार अफरीदी साहब उसको सब कमेटी को चेयर कर रहे हैं। उनको मैंने फॉरेन ऑफिस बुलाया, उनको दावत दी, उनको सारा ब्रीफ किया, और फिर मैंने वहां जाके जो स्पीकर साहब की सरबराही में कमेटी थी, जिसमें उलमाए दीन भी थे, सब थे, उनसे भी मशावरत की और एक प्लान बनाया। तो उसको भी हम लेके आगे चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने हालात और वसाइल के मुताबिक कि उनको वापस लाएं। हमें एहसास है उनमें ऐसे लोग हैं जो ले ऑफ हो चुके हैं, उनमें ऐसे लोग हैं जिनके वीजे खत्म हो चुके हैं, वो परेशान हैं। हमें उनकी परेशानी का पूरा एहसास है और हमारी एम्बेसीज को हमने हिदायत की है कि वो अपना उनके साथ ताउन करें। और बहुत जगहों से जहां कहीं कहीं शिकायत मिलती है, वहां बहुत अल्लाह के फजल करम से तारीफ भी आ रही है। हमारे एम्बेसीज के, हमारे एम्बेसडर्स के, एनवॉयज के रवैयों की तारीफ भी लोग कर रहे हैं। ये आजकल के जमाने में ये बड़ा मुश्किल है। आजकल के जमाने में आपकी नजर से कौन बचता है यार, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की करम से हो रहा है। तो मैं आज खास तौर पे पूरे फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, फॉरेन सेक्रेटरी को, DG UN को, मुनीर अकरम को, खलील हाशमी को, और जिन जिन हमारे ऑफिसर, हमारे जो क्राइसिस मैनेजमेंट के हैं, DG सलमान को, सबको। इट्स अ टीम वर्क और यहां फॉरेन ऑफिस एज ए टीम काम कर रही है। कमजोरियां किसमें नहीं होती। आप निट पिकिंग करना चाहें, कबाहतें निकालना चाहें तो आप 36 निकाल सकते हैं, लेकिन जिस जज्बे से ये फॉरेन ऑफिस काम कर रहा है, मैं इनको सलाम पेश करता हूं। शब्बीर, मौजम को भूल गया, स्टैंडर्ड बेचारा सुबह से लेकर शाम तक। हमारे स्पेशल सेक्रेटरी जो हैं वो मेरे ख्याल दिन में 36 मीटिंग्स भुगताते हैं, उनका जिक्र करना जरूरी है। राइट सर, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो भूल के मरना है। सर, प्रेसिडेंट ट्रंप ने WHO की फंडिंग को रोकने की बात की है पैंडेमिक के दौरान। आपने भी कहा कि पाकिस्तान ने, जब इंडिया ने कॉल आउट किया सार्क के लिए बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, तो पाकिस्तान ऑल्सो रीच आउट। तो पाकिस्तान का क्या टेक है इस WHO के मैटर पे? एक चीज और दूसरी बात ये कि जो आपने एम्बेसीज की बात की, मैं पर्सनली इस बात के वाउच कर सकता हूँ कि US में एटलीस्ट कम से कम 13 स्टूडेंट्स ऐसे जिनको एम्बेसी ने वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको वापस आना था। तो एब्सोल्युटली पाकिस्तानी एम्बेसीज अब्रॉड आर रीचिंग आउट और उनका अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर रही है, वो कर रही है। दिस इज एन एक्नॉलेजमेंट। तो US वाली साइड आप देखिए, US का जो है वो इस वक्त जो बहुत मौजू ज़ेरे बहस है वो है जो सदर ट्रंप ने WHO को जो ग्रांट देते थे, जो एड देते थे, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। ठीक है, यही है ना आपका सवाल? बिल्कुल मेरा अपना जाती व्यू है और मैं बिल्कुल आपसे शेयर करूंगा कि उनको अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। ये वक्त नहीं है, ये वक्त है तावन का, ये वक्त है मिलने का, सर जोड़ने का वक्त है। WHO की जिम्मेदारियां इस वक्त बहुत हैं और वो अगर हम उनके वसाइल काट देंगे तो उन जिम्मेदारियों में वो उनको मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। तो उनको शिकायत हो सकती है, उस शिकायत का अजाला भी किया जा सकता है और बहुत से ग्लोबल लीडर्स ने उनसे दरखास्त की है कि वो अपने फैसले पर नजरसानी फरमाएं। जी शब्बीर, PTV। Shabir from PTV World.
Foreign Minister, as you rightly pointed out that G20 has announced debt relief, but my question is whether they are also going to give like relief on interest rate as well, or they will charge the interest and capital and principal. Sorry, interest and principal. Both, they will give the relief on both the things. Correct. जी Zahid Malik. قریشی صاحب، ایک تو یہ بتا دیں کہ آج بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے IMF کا، جس میں اگلی قسط اور پاکستان کو مزید 1 ارب 40 کروڑ. دوسری یہ بتا دیں کہ جو یہ فیصلہ ہوا ہے یہ کیا عالمی مالیاتی اداروں کی حد تک ہے یا جو ہمارے بائیلیٹرل لونز ہیں، مثلا سعودیہ سے لیا ہوا ہے، UAE سے لیا ہوا ہے، اور کیا یہ ریلیف ملتا ہے تو کیا یہ ریلیف عوام تک بھی منتقل ہوگا؟ چونکہ $12 بلین آپ کے بقول کم از کم ہمیں دینے پڑتے ہیں سالانہ. انشاءاللہ عوام کی طرف جائے گا انشاءاللہ، اور نہ عمران خان کی اور نہ ہماری یہ سوچ ہے کہ یہ کسی کی جیب میں منتقل ہو. جو یہ پیسہ، جو اس پیسے میں خیانت کرتا ہے، چاہے احساس کا پیسہ ہے، چاہے لوگوں کے ریلیف کا پیسہ ہے، وہ انسانیت کے ساتھ ظلم کرتا ہے. کوئی ادارہ کرتا ہے، کوئی فرد کرتا ہے، کوئی کرتا ہے. تو یہ ہماری نیت بالکل صاف ہونی چاہیے. اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا اجر بھی دے گا اور اس کی پکڑ میں بھی آ جائے گا جو اس میں خیانت کرے گا. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے سوال کیا کہ آج اجلاس ہو رہا ہے. بالکل، آج IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں ریپڈ فائنانس کی جو انہوں نے فیسلٹی دی ہے اس پہ انشاءاللہ، میری حفیظ شیخ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ $1.4 بلین کی پاکستان کو ایک فسکل لیکوڈیٹی انہانس ہونے کا امکان موجود ہے، اور انشاءاللہ جب وہ پیسہ ہمیں ملتا ہے تو وہ بھی کووڈ-19 یعنی کہ کورونا ریلیف کے لیے استعمال ہوگا. جی جلیل صاحب، وائس آف امریکہ. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. آپ کی جو چین کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی ہے اور اس میں بھی آپ نے عمران خان کی اپیل کا ذکر کیا تھا جو ڈیٹ ریلیف کے لیے تھی. 2 روز پہلے ڈان کی ایک رپورٹ ہے کہ جب پریزیڈنٹ آنریبل ڈاکٹر عارف الوی صاحب چین گئے تھے تو رپورٹڈلی انہوں نے اس موقع پہ چین کو ایک ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جو $30 بلین کی جو ابلیگیشنز ہیں پاکستان کی، جو انرجی پروجیکٹس میں ہیں، سی پیک ریلیٹڈ پروجیکٹس میں ہیں، اس میں تھوڑا ریلیف دیا جائے. تو آپ ہم سے یہ شیئر کرنا چاہیں گے کہ یہ جو بائیلیٹرل ارینجمنٹس ہیں. میں صدر پاکستان کے ساتھ تھا اور میں سب سے پہلے تو آپ کو اس دورے کی نوعیت سمجھانا چاہوں گا. وہ دورہ کیا تھا؟ وہ دورہ یکجہتی کا دورہ تھا. وہ دورہ ایک پیغام تھا دنیا کو کہ ہم آئن بردرز ہیں، اور پاکستان پہلا ملک تھا جب اس آزمائش سے چین گزرا اور سرخرو ہوا اور کامیاب ہوا، ہم ان کو مبارکباد دینے گئے. دنیا جانتی ہے کہ خوبے پروونس میں اور ووہان میں جو کیفیت تھی اور جس جواں مردی سے اور جس مثبت پلاننگ سے انہوں نے اس پر غلبہ پایا، یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور پوری قوم ہمیں خوشی ہوئی کیونکہ ہمارا ایک کلیدی اور پرانا اور آزمایا ہوا دوست ہے، ہمیں خوشی ہوئی. نمبر 1 تو یکجہتی کا یہ ہمارا اور خیر سگالی کا ہمارا یہ دورہ تھا، اور اسی اسپرٹ سے انہیں لیا. اور پھر اس کا رسپانس دیکھیں، اس کا رسپانس سے ملا جب ہمارے ہاں یہ وبا پھیلنی شروع ہوئی تو انہوں نے فی الفور کہا کہ بے پناہ دنیا کی توقعات ہیں لیکن ہم پاکستان کو ترجیح دیں گے. فور وینٹیلیٹرز ہیں، ٹیسٹنگ کٹس ہیں، یا یہ جو ہے آپ کا پرسنل کا پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے، گیئر ہے، ہم پاکستان کو ترجیح دیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ان کے جہاز وہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں. پھر انہوں نے اپنی ایک ڈاکٹرز کی اسپیشل ٹیم بھیجی جنہوں نے ووہان میں کام کیا، اور اس ٹیم کے تجربات سے ہم مستفید ہوئے. انہوں نے آ کے ہمارے NIH کے لوگوں کو بریف کیا. وہ لاہور تشریف لے گئے، وہ کراچی گئے، وہ اور جگہوں پہ جا رہے ہیں. انہوں نے اپنا سٹے بھی بڑھا دیا تاکہ ہم ان کے ایکسپیرینس سے سبق سیکھیں اور اپنی حکمت عملی اس کے مطابق مرتب کریں. 1 نمبر 2
जो आपकी इत्तला है वो दुरुस्त नहीं है। चीन हमारा दोस्त है और चीन से कल वजीर खारजा से मेरी बात हुई। हमारा इस वक्त हम रिलीफ चाह रहे हैं। हमें रिलीफ कहां से मिल सकता है? इस वक्त पाकिस्तान को अगर रिलीफ मिल सकता है तो वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर फोकस करना है, क्योंकि आप हमारे जो कर्जाजात का हुजूम है ना, उसकी आप तशरीह कीजिए ना, उसको आप बाइफरकेट कीजिए, तो आपको अंदाजा होगा जो चीन का है वो तो आटे में नमक के बराबर है। ठीक, सो हमारा फोकस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ था और यही मैंने उनसे कहा, क्योंकि G20 का हिस्सा है ना चीन। तो चीन अगर फर्ज कीजिए अगर चीन कल रुकावट बन जाता, फर्ज कीजिए ये नहीं होना था, ये नहीं होना था, तो चीन का तावन दरकार था और चीन ने तावन दिया है, तो हम शुक्रगुजार हैं। दुनिया को दिया है, 76 ममालिक को दिया है, पाकिस्तान को भी दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने मुझसे यह भी कहा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात इस नौइयत के हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम बायलैटरली कर सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, और जब जरूरत महसूस होगी हम उनसे बायलैटरली कम्युनिकेट भी कर लेंगे इंशाअल्लाह। जी अनवर, बोल टीवी। शाह साहब, अनवर अब्बास, बोल न्यूज से। सर मुझे ये जानना है कि गुज़िश्ता दिनों ज़ायरीन और तबलीगी जमात के हवाले से जब वो फंसे हुए थे, देखा गया कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे एक काफ़ी नफरत अंगेज कैंपेन चलती रही, तो हुकूमत ने इस वाले से क्या किया है, और एक हमारे दोस्त मुल्क की जानिब से एक टीवी चैनल को खत भी लिखा गया था कि आप बताएं, आप माफ़ी मांगे। इसी कैंपेन में उन्होंने एक प्रोग्राम किया, इस वाले से हुकूमती इक़दामात का बताइएगा। देखिए, अफसोसनाक था जो और गैर जिम्मेदाराना रवैया था। मैं समझता हूं हमने दस्तबस्ता गुजारिश की थी सबसे, और सोशल मीडिया के जो लोग हैं, देखिए सोशल मीडिया को कंट्रोल करना वर्चुअली इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें हर बंदा मालिक है, हर बंदे की अपनी सोच है। दुनिया नहीं कर सकती, सिर्फ उनको गाइड कर सकती है, उनसे दरखास्त कर सकती है। और हमने उलमाए दीन जितने मकातिब फिक्र हैं उनसे कहा कि वो अपना किरदार अदा करें, और मैं शुक्रगुजार हूं उलमा का और जितने उनके जो थे मशाइख का, जिन्होंने अपना मुस्बत किरदार अदा किया और उस मामले को संभाला। हमें उनकी सपोर्ट दरकार थी, है, और आने वाले दिनों में माह रमजान के आयाम में उनकी सपोर्ट हमें मजीद दरकार होगी। उसके लिए एक इजलास भी बुलाया जा रहा है और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब उनसे इंगेज करने का इरादा रखते हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया का तो आप लें तो इस वक्त सबसे ज्यादा नफरत अमेज रोल तो हिंदुस्तान में है। आप देखिए इनका सोशल मीडिया का कर रहा है। आप देखें कि उन्होंने क्वारंटीन में भी तमीज कर दी है, उन्होंने क्वारंटीन में भी मजहब को लेके आए हैं कि जनाब ये क्वारंटीन जो है मुसलमानों के लिए है और ये गैर मुस्लिम के लिए। इंसानों की होनी चाहिए, मजहब का इससे क्या ताल्लुक है? जब ये कोरोना वायरस किसी को मुतासर करता है, वो कबीला देखता है, वो इलाका देखता है, वो मजहब देखता है, वो जबान पूछता है? नहीं, वो इन हदूद और कयूद से आजाद है। ये वो मनफी सोच है जिसको आज वो आरएसएस की वो हिंदुत्वा सोच के हिंदुस्तान ने उजागर किया है और जिसकी पाकिस्तान ने मजम्मत की है। वो तो इल्जाम लगा रहा है कि जी पाकिस्तान बंदे भेज रहा है यहां से वहां। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई हया करो। ये बातें करने की जो कर रहे हैं, हम तावन की बात कर रहे हैं, हम आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके साथ बैठने के तैयार कर रहे हैं, हम साख पे तावन कर रहे हैं, अब पाकिस्तान पे इस किस्म के घटिया इल्जामात लगा रहे हैं। पाकिस्तान की ये सोच नहीं है, पाकिस्तान की सोच मुस्बत थी, मुस्बत है और इंशाल्लाह मुस्बत रहेगी। और मेरी आपसे भी दरखास्त है कि आप पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें अपना किरदार अदा कर सकता है, लोगों की अवेयरनेस में, लोगों की एजुकेशन में। लास्ट टू क्वेश्चंस जी, ऑन एंड देन फैसल रजा। ऑन शिराजी, सच न्यूज टीवी से। कुरैशी साहब, मेरा सवाल यह है कि G20 ममालिक ने 76 ममालिक की एक फहरिस्त तो जो है वो फॉरवर्ड कर दी और उस पर खैर मकदम किया IMF ने। क्या बाकायदा तौर पे IMF ने उस पर रजामंदी का इजहार कर दिया, और क्या हमें डिप्लोमेटिक चैनल से या ऑफिशियल चैनल से ये बात बता दी गई है कि IMF अब हमें सपोर्ट करेगा, और अगर करेगा तो फिर कितनी एक IMF सपोर्ट करेगा? क्या ये भी हमें बताया गया, या हम वैसे ही दिल पे हाथ रख के मान ही जाओ?
मानना मुश्किल है, अच्छी खबर को अच्छी करके उजागर करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी कोई मनफी खबर दें तो बगैर पूछे आप सुर्खी ब्रेकिंग न्यूज देंगे, तो एक अच्छी खबर की भी ब्रेकिंग न्यूज दे दें, कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए गुजारिश ये है, ये सामने आ जाएगी, ये चीज सामने आ जाएगी, मत परेशान हो, इंशाल्लाह ठीक होगा, खैर की खबर आएगी इंशाल्लाह। जी इधर पहुंच गई है, इस कोने पे पहुंच गई है, इस कोने पे भी इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। जी फैसल 92। सर फैसल रजा खान 92 न्यूज से। शाह साहब, जहां आपने कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से वज़ीर आज़म ने एक इनिशिएटिव लिया, वो ग्लोबल इनिशिएटिव बन गया। एक और तरक्की पजीर ममालिक का जो सबसे बड़ा मसला है वो तिजारत का है, और कोरोना वायरस के बायस पाबंदियां हैं या नुकसानात हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। इस हवाले से बहुत से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं वो बहुत सारे ममालिक में मौजूद हैं, और यकीनन कोरोना पोस्ट कोरोना जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे मुश्किलात होंगी तिजारत के हवाले से। तो इसके ऊपर कोई मरबूत हिकमत अमली कौमी सतह पे जो है वो ज़ेर गौर है, और क्या आलमी सतह पे उन टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स और तिजारत को रवा रखने के लिए कोई हिकमत अमली पे गौर किया जा रहा है? नंबर एक। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को ये डेट रिलीफ के मद में कुछ जो है वो इम्पोर्ट बिल जो फ्यूल की मद में है उसमें और कुछ और चीज़ों में कुछ रिलीफ जो है वो मिला है, वो कि इक्तिसादी तौर पे बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो जो हमारी ज़राअत है आप उसको भी देखते हैं और उस पर नज़र है आपकी, तो ज़राअत की जो प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल है, बाकी शोबे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने 14 तारीख के बाद कुछ शोबों को खोलने का कहा था, तो उस हवाले से कोई हिकमत अमली ज़ेर गौर है? और तीसरा क्वेश्चन जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के हवाले से है, क्या उनको ऑपरेट करने के हवाले से कोई इजाजत देने के हवाले से कोई हिकमत अमली ज़ेर गौर है? जी ज़राअत पे मेरी नज़र है और होनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन मुझे कुछ अरसा कहा गया था कि काला चश्मा पहन लीजिए ज़राअत के मुतालिक, और मैंने कुछ अरसा काला चश्मा ही पहने रखा था। लेकिन मैं समझता हूं कि ज़राअत हमारी ज़रूरत है, और मैं खुद चेयरमैन फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान हूं, और मुझे पता है कि इस तबके की क्या ज़रूरियात है, और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता हूं, और मैं इसके जो गाहे बगाहे तजावीज़ होती हैं मैं देता रहता हूं। मैं खास तौर पर यहां शुक्रिया अदा करना चाहूंगा स्पीकर असद कैसर साहब का, जिन्होंने मुख्तलिफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात को सुनते हुए एक स्पेशल कमेटी तश्कील दी। उस स्पेशल कमेटी के मुताबिक उन्होंने एक इजलास मुनक्किद किया, और उस इजलास में उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को वहां मौका दिया कि वो आके ज़राअत पर अपनी बात करें। और जो उनका इजलास था जो पार्लियामेंट ने मुनक्किद किया था, जिसको वो चेयर कर रहे थे, उसके कंक्लूडिंग सेशन में उन्होंने मुझे एज ए की नोट स्पीकर बुलाया था, और मैंने जाके अपने व्यूज उनसे शेयर किए थे और दीगर पार्लियामेंटेरियन से शेयर किए थे। अब हमने फखर इमाम साहब की शक्ल में, जो एक मंझे हुए और तजर्बाकार पढ़े लिखे सियासतदान भी हैं, एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, ज़राअत को समझते भी हैं, वजीर आजम ने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है, और मैं तवक्को करता हूं, और वो उस सारी इस एक्सरसाइज में पूरी तरह इन्वॉल्व थे। ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, किसान इत्तेहाद, दीगर इदारे उसमें शामिल थे, और मिलकर हम एक राह अमल बना रहे हैं कि किस तरह ज़राअत को सहारा दिया जाए। आपके इल्म में है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, जो आप लॉकडाउन की बात करते हैं तो मत भूलिए कि फसल गंदम की आ गई है, इस फसल ने कटना है, और हमने साल के अपने दाने इकट्ठे करने हैं, आटे का हमने जखीरा करना है। अब अगर आप मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे तो कंबाइन कैसे चलेगी, हार्वेस्टर कैसे चलेगा? पास्को ने जो खरीदारी करनी है, और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट का टारगेट 8.4 मिलियन टन का जो आपको सेट किया है, इस गवर्नमेंट ने सेट किया है, माजी में कभी इतनी खरीदारी नहीं हो सकी, ये कैसी होगी? इसलिए उन्होंने कहा कि उनको रिलीफ दिया जाए। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स की जो इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर है, केमिकल इंडस्ट्री है, उसको खोला जाए, और उसको खोलने का नोटिफिकेशन हो चुका है, और इससे इंशाअल्लाह ज़राअत को और ज़राअत पेशा अफराद को कुछ ना कुछ सहारा मिलेगा। जहां तक आपने ट्रेड की बात की है, बिल्कुल अच्छी बात की है आपने, और इस पर भी गौर व फिक्र होना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि इसी दफ्तर खारजा ने एक इनिशिएटिव लिया था, और उसको कहते हैं इंगेज अफ्रीका। हमने किया था, और हमने कहा था कि हमें पाकिस्तान को नई मंडियों की तलाश करनी चाहिए,
اور نئی منڈیوں کی تلاش کی جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ افریقہ ایک کانٹیننٹ ہے جس کی 1.3 ارب کی آبادی ہے اور جس میں پاکستان آٹے کے میں نمک کے برابر ہے. ہمیں اپنی ٹریڈ وہاں بڑھانی چاہیے. ہم نے کینیا میں ایک اس کا اجلاس بلایا, صدر کنیاٹا تشریف لائے اور رزاق داؤد صاحب تشریف لے گئے اور ہم نے انگیج کیا. آج آپ دیکھیں یورپ متاثر ہو چکا ہے بری طرح, امریکہ متاثر ہو چکا ہے بری طرح. یہ ہماری 2 بڑی منڈیاں ہیں. افریقہ نسبتاً محفوظ ہے. تو جو چیز دفتر خارجہ کہہ رہا تھا کامرس کو کہ اس طرف توجہ کرو, وہ آج حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ that is the continent where Pakistan was missing and that is the continent that we should focus. اور میں آج بھی کہوں گا کامرس سے کہ اس پہ فوکس کریں تاکہ وہ سینٹرل ایشیا اینڈ افریقہ یہ 2 جگہیں ہیں جسے پاکستان کو کوئی بریک تھرو مل سکتا ہے. انٹرنیشنل فلائٹس کا میں پہلے عرض کر چکا آپ سے کہ اس کے لیے ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ہم بتدریج اس کی فلو میں اضافہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہتری آئے گی. مجھے پتا ہے بہت سے لوگ سٹینڈرڈ ہیں, پریشان ہیں, مجھ سے فون پہ رابطہ کرتے ہیں, میسیجز آتے ہیں, آپ کو بھی آتے ہیں, سب کو آتے ہیں, لیکن ہم اپنے وسائل کے مطابق جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. شکریہ جی, آپ تشریف